Mr. Ivanov, Mr. Sergey Azarenkov, CEO of St. Petersburg Convention Bureau, welcome for the second time at BLTM. Mr. Kim Bon Lim, Area Director, India, South Asia and Africa of Singapore Tourism Board based in Delhi now. Welcome, Mr. Lim. Mr. Krishnanta Fernando, General Manager of Sri Lanka Tourism. Welcome, Mr. Fernando, to BLTM. Mr. Gajesh Girdhar, Chairman of NEMA. Welcome, Mr. Girdhar. A number of other distinguished guests in the Welcoming everybody once again to BLTM 2023. Requesting everyone to join us at the conference area at the Emerald Hall for the inauguration. Any other venue anywhere in the world. So I invite your participation there also. And without taking much time, in the interest of hearing from our foreign guests, I would like to just welcome you all again and look forward to a very fruitful 2 days. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Agarwal, for your warm address. And now I would like to invite... Try to pronounce the main word namaste. Is it correct? Yes. Thank you so much. So, you know, it is really my first time in my life I here in India, and I really open with my heart, my soul, and my brain that to see the Indian hospitality, the Indian way of doing business, and doing a deep connection between Indian and Moscow business. You know, previously we were just the guests in this exhibition, in this event, and as for now we have our really. I hope you will really like our stand, and we have 17 representatives of Russian companies who are really glad. First time in my life I here in India, and I really open with my heart, my soul, and my brain that to see the Indian hospitality, the Indian way of doing business, and doing a deep connection between Indian and Moscow business. You know, previously we were just the guests in this exhibition, in this event, and as for now we have our really. I hope you will really like our stand, and we have 17 representatives of Russian companies who are really glad to have the opportunity to make a new business connection with all the participants of this great event. And as for now, I hope that we will make a really new. जो कि भारतवर्ष की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ट्रैवल ट्रेड एग्जीबिशन करने वाली कंपनी है, उसका संस्थापक और सीईओ हूँ। ये पिछले 30 सालों से हम सारे भारतवर्ष में इस तरह की पर्यटन की प्रदर्शनियाँ किया करते हैं, और दिल्ली में ये जो प्रदर्शनी है 2 दिन की, इसका नाम है BLTM। इसका फोकस ये है कि जो बिज़नेस और लेजर, ये दोनों ट्रैवल को ब्लेंड करके आजकल एक नया ट्रेंड है कि अगर आप बिज़नेस के लिए कहीं पर घूमने जा रहे हैं, या कोई आप मीटिंग्स या इंसेंटिव ट्रैवल या कोई कन्वेंशन या कोई इवेंट जैसे शादियों वगैरह के इवेंट होते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, इन सब के बारे में, जहाँ की जो ट्रैवल है या इम्पॉर्टेंट हो गया है। और इंडिया के लिए भी रशिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से रशियन अब इंडिया आना पसंद करेंगे, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल मार्केट है यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ जाना उतना शायद ना पसंद करें। तो उस तरह से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फोरम है, जहाँ की न सिर्फ यहाँ शो फ्लोर पे आप जो देख रहे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सी एक्टिविटी है। इसी हॉल में बायर सेलर मीट होगी, और ये जो हाई लेवल डेलीगेशन आया है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में लोगों से मिल रहा है, और हम आशा करते हैं कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव पर्यटन उद्योग पे पड़ेगा। और इंटरनेशनल कम गया है,
लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए, तो हमें विदेशी टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करने पड़ेंगे। और उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नए जो देश जो ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है हमारे, जैसे रशिया बहुत स्ट्रांग है इंडिया के लिए, बट और बहुत संभावना है। लेकिन क्लाइमेट जिस तरीके से इफेक्ट कर रहा है यहाँ पर अपना घरेलू टूरिज्म। मेरे साथ संजीव अग्रवाल जी हैं। संजीव जी, कितनी उम्मीदें आपको इस कार्यक्रम से लग रही हैं BLTM से? उम्मीदों का तो कोई ठिकाना नहीं, बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि पर्यटन उद्योग अभी 1-2 साल पहले इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरा था कोविड के टाइम, कि अभी उसका बैकलॉग क्लियर करने के लिए हम सब तत्पर हैं। और खुशी की बात यह है कि ये एक नॉर्मल लेवल पे, सिर्फ नॉर्मल लेवल पे ही नहीं आ गया कि उससे भी ज़्यादा जा रहा है, और एक बूम की स्थिति हम देखते हैं अभी निकट भविष्य में। जो सुविधाएं की बात की जाती है भारत के अंदर टूरिज्म में, कहा जाता है बहुत सारी अड़चनें आती हैं टूरिस्ट को लेके, तो उसके बारे में क्या कुछ कदम उठाएगा? इसमें देखिए, जो हमारी देश की जो परिस्थिति होती है देशवासियों के लिए, वही एक फैक्टर बनता है टूरिस्ट के लिए। जो परेशानी अगर हम देशवासी फेस करता है, अक्सर वही परेशानी टूरिस्ट को भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए हमारे रेलवे स्टेशंस अच्छे नहीं हैं या हमारी सड़कें अच्छी नहीं हैं, तो वो दिक्कतें, वो परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। पर उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि अभी जो जियोपॉलिटिक्स जो उभर के आ रहा है दुनिया भर में, कि एक वेस्टर्न कंट्रीज़ का और एक ईस्ट का एक तरह से नए तरीके से एक अलगाव सा हो रहा है, उसमें नई मार्केट की पैटर्न्स उभर के आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो रशियंस हैं वो बड़ी तादाद में, ये इस वॉर के बावजूद भी बहुत उनकी इकोनॉमी सही चल रही है, और अब वो ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री की ओर रुखसर नहीं होंगे बहुत जल्दी आने वाले टाइम में, तो वो इंडिया जैसी कंट्री में आना चाहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया गवर्नमेंट के लिए। वैसे ही अब वो वेस्टर्न टूरिस्ट भी रशिया ज़्यादा जाना नहीं चाहेंगे अभी निकट भविष्य में, तो इसलिए वो यहाँ आके प्रमोट कर रहे हैं कि इंडियंस भी अब रशिया जा सकते हैं। बहुत सुंदर एक यूरोप की कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन है, तो लोग अभी जैसे वेस्टर्न कंट्री ज़्यादा जाते थे और उनको अभी वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही है वेस्टर्न कंट्री में जाने की, तो वो रशिया जा सकते हैं। तो इस तरह के नए पैटर्न उभर के आ रहे हैं। जैसे माने कि जो एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो सब एक साइड हो गई है, और अदर्स वर्ल्ड एक ऐसा पैटर्न दिखाई पड़ता है कि जो एक हम कहते थे उसको लॉन्ग हॉल टूरिज़्म, कि भाई वेस्टर्न कंट्री से बहुत हमारे यहाँ फॉरेनर आते थे और राजस्थान, जयपुर, आगरा ये सब घूमते थे। वो जो एक ट्रेडिशनल सेक्टर थोड़ा सा ठंडा पड़ा है ये G20 के बावजूद भी, और हमें वो उसकी भरपाई शायद हमें रशियन और साउथ ईस्ट एशियन टूरिस्ट, सिंगापुरियन हो गया, मलेशियन हो गया, थाई हो गया, इन सब से हम पूरी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वैसे ही जो वेस्टर्नर अभी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे इधर, और हम वहाँ जाना चाहते थे, हम भी अपना आसपास की जगह में जा सकते हैं। कितना आपको लगता है कि अगर हम इकनॉमी को देखें तो कितना फ़र्क पड़ सकता है आने वाले समय में? इसमें देखिए, टूरिज़्म वैसे देखें तो बहुत बड़ा एक मल्टीप्लायर ऐसी है कि टोटल वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिए, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है। ये मोदी जी का 9 साल पहले, जब वो पहली बार उनका मैनिफेस्टो में टूरिज़्म एक बहुत बड़ा मुद्दा था और काफ़ी प्रयास भी किया गया है, बट कुछ ऐसे काफ़ी काम भी हुआ है, बट अभी और बहुत आगे इसको ले जाया जा सकता है। और इसमें मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो अभी एक मार्केट पोजीशनिंग है भारत की, वो अभी क्लियर नहीं हो, क्योंकि हमने इनक्रेडिबल इंडिया से स्टार्ट किया था, लेकिन वो बहुत पुरानी हो चुकी है। हम टोटल अपना डिपेंड करते हैं, जो हमारा इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर है, लेकिन हम टूरिज़्म पे उतना हम नहीं दे पाए, जबकि बहुत सारी कंट्रीज टोटल टूरिज़्म पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उनके जैसी तो हमारे बहुत सारी कंट्री बन जाएगी हमारे देश के। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारे दुगने तिगुने चौगुने की संभावना है। और ये बीचेस है, हमारे यहाँ पहाड़ है, हमारे और हमारे यहाँ सब कुछ है। सबसे बड़ी जो हमारी जो विरासत जंगल है और आर्कियोलॉजी है। आर्कियोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है। आज अब देखिए, पहले लोग आर्कियोलॉजी देखने इजिप्ट जाते थे
और ये बहुत अभी वो उतना सेफ नहीं है कई लोगों के नज़र में, तो वो स्थान भारत ले सकता है, लेकिन उसके लिए जो विज़न चाहिए और जो पब्लिसिटी चाहिए वो अभी बीच में शायद कोविड के धक्के के कारण पीछे पड़ गया था, और ऐसा आने वाले टाइम में संभव है अगर एक कंसर्टेड प्रयास किया जाए तो। सीधे मालूम पड़ता है कि आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि भारत टूरिज़्म की ओर तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। और जैसा कि भी सर ने बताया कि जो पड़ोसी मुल्क हैं या दूसरे देशों को कहा जाए जो टूरिज़्म के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं लगभग, उनके मुकाबले कहीं ना कहीं भारत उनके कंपटीशन में खड़ा हो पाएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल इंडिया के लिए मैं अजीत कुमार। Convention Bureau to share his thoughts with us. Can we please welcome him with a big hand? Дорогие гости, дорогие участники и организаторы выставки, Good afternoon, dear colleagues and friends. I'm glad to welcome all of you here on behalf of St. Petersburg Convention Bureau. я испытываю легкое чувство дежавю, потому что ровно год назад Санкт-Петербург принимал участие в этой выставке первый раз. Мы принимали участие достаточно плотно, большой делегацией, и вот через год можно подвести предварительный. On behalf of Sri Lanka Tourism, let me warmly welcome each and every one of you to Sri Lanka. Each and every one of you. Sri Lanka Tourism, Sri Lanka Convention Bureau has been participating with BLTM since 2017, and today we are with 24-member delegation, and we only missed 2 years. That was due to COVID and the economic conditions in Sri Lanka. So far we have attracted 200,000 Indian visitors to Sri Lanka, and we like to see the mark cross 1 million given the demographics of India. Very encouraging. You get to meet so many people, you get to know the trends, so it's definitely a happening place for people like us. We have Sri Lanka is around destination, all around, not just one particular place. Colombo is a main city, but Sri Lanka is all around destination. The hotel in the 1864 they approved the hotel. They were very deep. What the tourism palace? Which one? One the hotel, antique hotel. They did 1864. Golf Face Hotel. They are here with us today, so you can talk to them. They will tell you the heritage and what's behind the Golf Face Hotel. What is it saying that India, you come to, what is it saying the India? India, this is my first time coming to Delhi, but my colleague has... बता दीजिए। मेरा नाम यश यादव है। यश यादव जी, ये जहाँ प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में? द लीला एम्बियंस कन्वेंशन सेंटर है ये जो आपने मास्को का आपने यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं? उम्मीदें तो पूरी हैं कि एक ऐसा छुपी हुई जगह है ये, जो ज़्यादा लोग यहाँ जाते नहीं है या जाने की आशा नहीं रखते हैं, पर जैसे भारत अपने आप में बहुत बड़ा है और ऐसी बहुत जगहें हैं जहाँ लोग जाते नहीं हैं या जानते नहीं हैं, वैसे ही रशिया भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा शहर है और देश है जो मेरे ख्याल से ज़्यादा छुपा हुआ है लोगों की नज़रों से और उतना झलक पे नहीं आता है लोगों को। तो जो जैसे कि भी यूक्रेन और रशिया के बीच में आप सभी जानते हैं वार चल रही है, तो उसके बावजूद लोग वहाँ जाने के लिए इच्छुक नज़र आ रहे हैं आपको? कुछ लोग हैं जो पीछे हट जाते हैं कि नहीं हम रशिया नहीं जाएंगे, पर वो ये समझते हैं कि जो जंग है, जो युद्ध है, वो बॉर्डर की लाइन पे चल रहा है, तो जो मेन सिटीज़ है, मॉस्को हो गया या सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, वो उतना इफेक्ट नहीं होता। अब मैं इसको पलट के सवाल करता हूँ जी, क्या आपके पास में आपको ऐसा लगता है कि लोग इंडिया को भी घूमना चाहेंगे, जो टूरिस्ट हैं वो रशिया भी जाना चाहें और इंडिया भी आना चाहें? ऐसा ये प्रयास चल रहा है। 12 कंट्रीज़ का जैसे हमें जानकारी मिली है, 12 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इस प्रोग्राम में, BLTM जी। तो आप मुझे बताएंगे कि कितनी आपको उम्मीदें हैं इसमें? जी, उम्मीदें पूरी हैं कि लोग हमारे देश में भी आएंगे। आपको नहीं लगता जितना टूरिज़्म अदर कंट्रीज़ में है, हम देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो टोटल टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड करती है जी, और हमारे देश में तो बर्फ़, पहाड़, जंगल
सब है, आर्कियोलॉजिकल सब कुछ है, बीचेस है, सब कुछ है। तो ये देखने के लिए इंडियंस लोग भी बाहर जाते हैं जी। तो क्यों ना यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दें। देखिए बात बहुत साफ सी है कि लोग ये सोचते हैं कि हाँ इंडिया ये तो हम कभी भी देख लेंगे, पर बाहर विदेश जाने का मौका पता नहीं कब मिले ना मिले। तो जितनी जल्द से जल्द मिलेगा तो लोगों को आप कितना भी उकसा लो कि नहीं जो बीच आपके बाली में है वो सेम गोवा या पौंडीचेरी या अंडमान में भी है, पर लोग फिर भी प्रेफर करते हैं कि नहीं हम विदेश होके आए हैं, चाहे वो सेम चीज़। अंडमान के बहुत सारे जो द्वीप है वहाँ पर ओपन कर दिया है जाने के लिए, टूरिज्म के लिए बढ़ावा देने के लिए। कितनी अंडमान के बीच भी मेरे ख्याल से सबसे साफ़ है इंडिया में, क्योंकि वहाँ उतना टूरिस्ट जाता नहीं है। आप गोवा के बीच देखोगे वहाँ गंदगी है, प्लास्टिक के थैले पड़े होंगे, पर अंडमान के बीच में 2019 में गया था, तब गोवा और पौंडीचेरी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो सबसे साफ़ बीच मेरे को वहीं मिला था। तो ये आप देख रहे थे कि किस तरीके से एक दूसरे के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए BLTM ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। आशा करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा और जो 12 देश बताए जा रहे हैं उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों से टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। जो पवेलियन है यहाँ पर कई देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो आए हुए हैं। आप देखिए सामने मॉस्को पवेलियन है जो कि रशिया को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा विशाल एरिया में ये लगा हुआ जो प्रदर्शनी जो ये हॉल है ये काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है। आप देखें वहाँ जहाँ दूर तक निगाहें जा रही हैं, बहुत दूर तक ये जो कार्यक्रम का जो जगह है वो काफ़ी दूर तक फैली हुई है और 12 देशों के बताया जाता है कि यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने वाले इस कदम से भारत को टूरिज़्म को कितना बढ़ावा मिलता है और किस प्रकार से जो भारत का जो एक कदम है कितना आगे अग्रसर होता है और इसे कितना लाभ भारत को मिल पाता है। आपका नाम बता दीजिए। रामचंद्र सर। रामचंद्र यस। रामचंद्र, आप तो भगवान के नाम से रामचंद्र जी हैं। कितने लोग विजिट कर रहे हैं अभी सुबह से अभी तक? अराउंड 100 हो गए होंगे सर। आपके पास सिर्फ अकेले आपके 100 हो गए? कितनी उम्मीदें आपको लग रही है इस प्रोग्राम से? काफ़ी अच्छी है, ऑप्टिमिस्टिक है। लोग आ रहे हैं आपके पास में? जी जी। और क्या क्या पूछताछ, क्या क्या क्वेरीज आपके साथ हो रही है? सर विक्टोरिया टूर के बारे में पूछ रहे हैं और वियतनाम के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप इंडियंस हैं, आप भारतीय हैं? यस। तो आप वियतनाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस सर। क्यों बताइए, मुझे बताइए। तो बहुत अच्छी कंट्री है। मतलब अनएक्सप्लोर्ड एरिया है और अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो अभी आप वियतनाम को प्रमोट कर रहे हैं? जी जी। इंडिया को क्यों नहीं कर रहे? सर इंडिया को भी करेंगे। इंडिया को भी करेंगे, ठीक है। तो ये वहाँ से जो आएंगे हम उनको इंडिया का करेंगे, इनका करेंगे। तो आपको काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं कि टूरिस्ट आएंगे? जी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ लगातार लोगों की आमद बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं कि यहाँ वियतनाम है और जगह जगह जो इनके स्टॉल्स लगे हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं। गोवा का स्टॉल लगा है, सामने श्रीलंका का स्टॉल लगा हुआ है, लक्षद्वीप का स्टॉल लगा है, मालदीव्स का। तो हर जो यहाँ के जो 12 देश बताए गए कि 12 देश यहाँ पर आए हैं जो कि अपने अपने स्टॉल लगाकर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। भारत सरकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जिस तरीके से टूरिज़्म के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इनका कितना प्रभाव टूरिज़्म के ऊपर पड़ता है। फिलहाल मैं अजीत कुमार। Okay, myself is Puneet from Samay Holidays based in New Delhi. अभी आप इस प्रोग्राम में आए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? It's a good platform where buyer and exhibitor can catch up each other for their business terms and they look after for the new opportunity for your market and for their business prospect. क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से भारत में टूरिज्म बढ़ेगा या फिर इससे क्या फ़ायदा होगा? इस तरह के आयोजन से ये बहुत बेसिक चीज़ है कि इस तरह के आयोजन कर पहले हम हैदराबाद तेलंगाना टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से आए हैं। हम जनरल मैनेजर ऑफ तेलंगाना टूरिज्म। BLT का जो कंसेप्ट लगा है, लगातार कितने सालों से लगातार आ रहा है, तो
टूरिज्म को किस तरीके से डोमेस्टिक टूरिज्म को किस तरीके से देखते हैं B2B यहाँ पर बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या इनिशिएटिव? अभी B2B बनाने के लिए हम लोग ना जो ट्रैवल एजेंट्स है इधर का थ्रू आउट इंडिया, जिधर से भी ट्रैवल एजेंट सर्विस चाहते हैं ना, हम डायरेक्ट एजेंट्स भी देते हैं। हमारे पास एजेंट्स रहता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके, उन लोगों के लिए हमारा ऊपर ट्रांसपोर्टेशन रहता, बोटिंग रहता और होटल्स रहेगा, अकोमोडेशन पूरा कस्टमाइज्ड टूर्स पैकेजेस पे करेंगे हम हैदराबाद से। उन लोगों के लिए अगर वो एजेंसी लिए ना, उन लोगों के लिए ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर 10% कमीशन मिलेगा और अकोमोडेशन के ऊपर 15% कमीशन मिलेगा। जो भी हमारा एप्लीकेशन लेके दो बिजनेस करता है उनके लिए डिस्काउंट भी पॉसिबल रहता। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना तरफ से भी जितना भी तेलंगाना में जितना मॉन्यूमेंट्स है जो भी हम भी सर्विस देने के लिए कभी भी रहते हैं। तेलंगाना टेम्पल के लिए बड़ा मशहूर है, बड़े हाँ टेम्पल्स है और किस तरीके से वहाँ पर टेम्पल पे सुरक्षा एंड सिक्योरिटी की मीन्स? सिक्योरिटी का कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना टेक केयर ऑफ एवरीथिंग और भी बहुत अच्छा है। नॉट ओनली टेम्पल टूरिज़म, लीजर टूरिज़म, सब के लिए बढ़िया सा जगह है। सो आप अभी हैदराबाद आकर देखिए कितना डेवलप है। नॉट ओनली IT इंडस्ट्री में डेवलप हुए, टूरिज़म में हम आगे आ चुके हैं। इसलिए आप इधर पूरा ट्रैवल एजेंट्स हमारे को बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज़ हेल्पिंग अस टू एक्सपैंड आवर सर्विसेज एंड टू इंश्योर आवर टूरिज़म बेटर एंड फास्टर वे। दैट्स वाई दिस इज मोर। आपका नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम आकांक्षा पात्रो है। आकांक्षा, कितना आपको उम्मीद लग रही है जो प्रोग्राम BLTM ने कराया है, कितनी आपको आशाएं लग रही है कि इसमें भारत को काफ़ी कामयाबी मिलने वाली है? मुझे लगता है कि काफ़ी कामयाबी मिलेगी क्योंकि हम सुबह से यहाँ पे हैं एंड काफ़ी सारे वेंडर्स से एंड काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स से मिल चुके हैं, स्पेशली बिकॉज हम मॉस्को और रशिया हैंडल कर रहे हैं राइट नाउ। अभी इस टाइम पे काफ़ी लोग थोड़े डरे हुए हैं कि उन्हें रशिया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बट क्योंकि हमें स्टोरी पता है वहाँ पे क्या चल रही है एंड इट्स काफ़ी सेफ़ है वहाँ पे जाना इस वक्त, तो हम उन्हें बता पा रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग है कि ये एक अच्छा डेस्टिनेशन है जहाँ वो जा पाए। तो मुझे लगता है BLTM में काफ़ी सक्सेस मिलेगी, स्पेशली टू मॉस्को एंड बाकी जितने भी यहाँ पे स्टैंड्स आए हुए हैं। सो यस, आई थिंक काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट किया गया है एंड काफ़ी यहाँ पे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं जो इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं। कितने लोग सुबह से अभी तक आपके पास आ चुके हैं? अब कम से कम 60 से 70 लोग आ चुके हैं हमारे पास सुबह से। 60 से 70 लोग? हाँ जी, तो हमारे पास काफ़ी कार्ड्स भी हैं। सो यस, सो आई थिंक काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग इवेंट है, काफ़ी लोगों से हम कनेक्ट कर पाए हैं एंड सिर्फ टूरिज़्म में ही नहीं, बाकी एस्पेक्ट्स में भी, इवेंट्स में, वेडिंग में, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में हम लोगों से कनेक्ट कर पाए हैं। तो जैसे कि हम पहले से हम रशिया के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी पुराने हैं जी, लेकिन वो दूसरे तरीके से थे कि किसी उसमें अदर हथियारों में के हैं या किसी और चीज़ में के हैं, लेकिन अभी जो नया टूरिज़्म वाला जो एक वो शुरू हुआ है, कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, इससे आपको कितनी आशाएं लगती हैं? काफ़ी आशा लगती है क्योंकि एक तो वीज़ा काफ़ी इजी कर दिया है अब रशिया ने, अब ई-वीज़ा हो गया है, स्टैम्प वीज़ा हो गया है, तो लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब लोग बाहर ट्रैवल करते हैं वीज़ा की होती है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब वीज़ा काफ़ी ईजी कर दिया है, फ़्लाइट की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, हफ्ते में 5 बार एरोफ्लोट जाती है दिल्ली से डायरेक्टली, 6 घंटे की फ़्लाइट है, इतनी लंबी फ़्लाइट भी नहीं है। एंड एज अ कंट्री आई थिंक उनके पास काफ़ी कुछ है टूरिस्ट के लिए, बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है करने के लिए, और एक नया डेस्टिनेशन है, इतना भी फेमस नहीं है, बहुत लोग नहीं जाते हैं, तो आई थिंक आज के टाइम में हर कोई एक नया डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाहता है तो होगा। ऐसी जगह रशिया में जो आपको लगता है कि वहाँ लोगों को जाना चाहिए? मेरे हिसाब से लोगों को सेंट पीटर्सबर्ग ज़रूर जाना चाहिए। मैं खुद नहीं गई हूँ लेकिन वो मेरी बकेट लिस्ट पे है क्योंकि स्पेशली क्रिसमस के टाइम पे वो जगह बहुत सुंदर होती है। फैमिली के साथ अगर आपको लगे कि मुझे रशिया जाए तो कहाँ पर जाएंगे? मैं सेंट पीटर्सबर्ग ज़रूर जाऊँगी एंड उसके बाद मॉस्को एंड नदर्न लाइट्स भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है रशिया में, और बाकी कंट्री के कंपैरिजन में वो काफ़ी चीपर है। अगर आपको नदर्न लाइट्स देखनी है तो रशिया जाके आप देख सकते हैं। तो ये आकांक्षा थे जो ये बता रहे थे कि रशिया जाना क्यों ज़्यादा बेहतर है, और क्योंकि भारत के काफ़ी उनके साथ में मित्रता संबंध भी रहे हैं, मैत्रीय संबंध भी रहे हैं, तो इसको लेके काफ़ी आशाएं भी की जा रही हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि टूरिज़्म को इन कदम से और आकांक्षा जैसे जो लोग जो प्रमोट कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, उससे कितना लाभ होगा। मैं अजीत कुमार।